Yes, sir. So the hypersensitized area is also inflamed, and as a result of which an influx of immune cells and molecules that result in detrimental symptoms starts, including, अब यहाँ पर क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा। क्रोनिक इन्फ्लामेशन मतलब हमेशा इन्फ्लाम्ड रहेगा टिश्यूज। जैसे जिसको गेहूं से एलर्जी रहता है, उसका इंटेस्टाइन, गेहूं में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है, और कुछ इंडिविजुअल जो है उस प्रोटीन से एलर्जी रहता है। तो पहले समझ में नहीं आता है कि बच्चे को हो क्या रहा है। जब भी वो ब्रेड खाएगा, रोटी खाएगा, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। तो इसको डिटेक्ट किया जाता है बाद में, फिर उसके बाद उसको हटाया जाता है उस डाइट से, तो तुरंत ठीक हो जाता है, वो फिर ठीक भी हो जाता है, नहीं तो फिर वो डेथ भी हो जाती है उसकी। ठीक है, इंक्लूडिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन, तो उसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, एंड रैम्पेंट टिश्यू डिस्ट्रक्शन। टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी होगा, अपना ही टिश्यू डिस्ट्रक्ट होगा। In contrast, immune deficiencies caused by a failure to properly deploy the immune response usually result in weakened and dysregulated immune response that can allow pathogens to get the upper hand. Immune deficiency में हमारा immune system deficient है, तो पैथोजन को अपर हैंड मिल गया। Okay, this is good time to mention that the healthy immune response involves a balancing act between immune aggression and immune suppression pathways. While we rarely fail to consider erroneous attacks, autoimmunity, or fails to engage immune deficiency as dysfunctional, we sometimes forget to consider the significance of the suppressive side of the immune response. Imperfections in inhibitory arm of the immune response, एक इनहिबिटरी आर्म भी है इम्यून रेस्पॉन्स का, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं। एक उसका और भी आर्म है, दैट आल्सो फंक्शंस, and imperfections in the inhibitory arm of the immune response present as a check to balance all the immune attacks we constantly initiate can be equally profound. Healthy immune responses must therefore be viewed as a delicate balance, spending much of the time with one foot on the brakes and one on the gas. Okay? एक तरह का बैलेंस है इम्यून रेस्पॉन्स हमारा, उसमें सप्रेसिव पाथवे भी है और एक्टिवेटिंग पाथवे है। दोनों पाथवे के बीच में बैलेंस के द्वारा हमारा सेल्स जो है हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होने देता है, ओके, एलर्जी नहीं होने देता है। लेकिन जहां गड़बड़ी हो गया, सप्रेसिव पाथवे इनएक्टिवेट, वहां बैलेंस, तो कुछ इंडिविजुअल्स में जिसमें गड़बड़ी हुआ तो हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। देखते हैं हाइपर सेंसिटिविटी वन बाय वन। Allergy and asthma are examples of hypersensitivity reactions. These result from inappropriate and overly active immune response to common innocuous environmental antigens such as pollen, food और एनिमल डेंडर। किसी एनिमल का स्किन का टुकड़ा या बाल का टुकड़ा या कोई बॉडी पार्ट्स, इससे भी हो सकता है एलर्जी। The possibility that certain substances induced increased sensitivity, hypersensitivity, rather than protection was recognized by 1902 में चार्ल्स रिचेट ने इसको रिकॉग्नाइज किया था कि कुछ सब्सटेंस जो है बहुत ही ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी काउज कर सकते हैं इन सम इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसको छोड़ो, यहाँ ये सब डॉग वाला एक्सपेरिमेंट था। और रिचेट जो है कंक्लूड किया था कि ए सक्सेसफुल वैक्सीनेशन टिपिकली रिजल्ट्स इन फाइलेक्सिस, यानी प्रोटेक्शन, और एनाफाइलेक्सिस इसका उल्टा होता है, दैट इज एंटी प्रोटेक्शन। एन एक्सट्रीम रैपिड एंड ऑफन लीथल ओवर रिएक्शन ऑफ द immune response is something it has encountered before, can result in certain cases in which exposure to antigen is repeated. Anaphylaxis जो है इसका उल्टा है, hypersensitivity, anti protection.
Okay. So Richet discovered Nobel Prize 1913 for his discovery for anaphylactic response. The term is used today to describe a severe life-threatening allergic response. Fortunately, most hypersensitivity or allergic reactions in humans are not rapidly fatal. There are several different types of hypersensitivity reactions. Some are caused by antibodies and others are the result of T cell activity. एंटीबॉडी के भी ज्यादा प्रोडक्शन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है और टी सेल एक्टिविटी और बी सेल एक्टिविटी दोनों की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है। However, most allergic or anaphylactic response जो है किसको कह रहे हैं एनाफिलैक्टिक रेस्पॉन्स, यही एलर्जी रेस्पॉन्स ही एनाफिलैक्टिक रेस्पॉन्स है। ठीक है, क्योंकि दो तरह का रेस्पॉन्स है ना इम्यून का। आप सोच रहे हो सर क्या बोल रहे हैं एनाफिलैक्टिक बार बार। एक तो फाइलैक्टिक रेस्पॉन्स है जो कि आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है, और ऐसा रेस्पॉन्स जो आपको प्रोटेक्शन ना दे उल्टा आपके लिए डेंजर बन जाए, जो अनवांटेड रेस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज एनाफिलैक्टिक रेस्पॉन्स। एलर्जी भी जो है एनाफिलेटिक रेस्पॉन्स है। अस्थमा इज ऑल्सो एनाफिलेटिक रेस्पॉन्स। ये क्लियर है एनाफिलेक्सिस सबको? एनाफाइलेक्टिक रेस्पॉन्स, यस सर। इन्वॉल्व है टाइप ऑफ एंटीबॉडी, और एनाफिलेक्टिक रेस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व है टाइप ऑफ एंटीबॉडी दैट इज एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ई, IgE। आगे हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे इसके बारे में। टाइप 1 उसी को बोला गया सर। 5 तरह के होते हैं इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए, ई, जी, एम, 4 तरह का होता है, और डी भी होता है, हम भूल रहे हैं थोड़ा सा, बहुत पहले पढ़े थे। 5 तरह का होता है। 5 तरह का होता है, हाँ हाँ। ए होता है, ई होता है, जी होता है, एम होता है, और एक और कौन सा है भूल रहे हैं। अब पढ़ाएंगे तो अब हम भी रिवाइज कर लेंगे तो याद आ जाएगा हमको। ओके, तो इसमें जो है पर्टिकुलर आपका मेनली जो इम्यून पैथोजन से लड़ता है जो वो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन टाइप है, IgG, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन टाइप ई जो है एंड बाइंडिंग टू IgG, जब एलर्जी का टेस्ट करते हैं ना किसी को एलर्जी है कि नहीं है तो यही टेस्ट करते हैं, IgE को एलाइजा से मेजर करते हैं कितना IgE लेवल है इसमें ब्लड में। IG लेवल ज्यादा मिलेगा बता देंगे किसी चीज से इसको एलर्जी हुआ है। बाइंडिंग ऑफ IgE टू इट्स स्पेसिफिक एंटीजन, अब हर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक IgE है, रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ भी क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन है तो स्पेसिफिक होगा ही। स्पेसिफिक एंटीजन और एलर्जन जिसको कहा जाता है, एलर्जी काउज करने वाले एंटीजन को स्पेसिफिकली एलर्जन बोला जाता है। ओके, induces the release of substances that causes irritation and inflammation। इसकी वजह से इम्यूनोग्लोबिन ई के रिलीज होने की वजह से बहुत सारा ये इंड्यूस करता है सब्सटेंस, और इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाता है वहां पर टिश्यू एरिया में जहां पर हाइपरसेंसिटिविटी चल रही है, और सेल्स और फ्लूइड का भी एक्यूमुलेशन हो जाता है वहां। When an allergic individual is exposed to an allergen, symptoms may include sneezing, wheezing, and difficulty in breathing। छींकेगा, खांसेगा, हांफी लेगा, या सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है उसको, या स्किन पर उसको डर्मेटाइटिस लाइक स्किन इरप्शंस भी हो सकते हैं, स्किन जो है चकत्ता चकत्ता निकल जाएगा, ये भी एक एलर्जी में होता है। एंड इन मोर सीवियर केसेस, बहुत ज्यादा खतरनाक केस अगर हो गया, ये सब तो छोटा मोटा चीज हो गया, छींका खांसा ये सब, सीवियर केसेस स्ट्रैंगुलेशन ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्टेड एयरवेज फॉलोइंग एक्सट्रीम इन्फ्लामेशन, जो अस्थमा में होता है,
दम घुट गया उसका, बताए थे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, जिससे उसको स्ट्रैंगुलेशन होने लगता है। एंड ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम इन्फ्लामेशन इन द एयर पैसेज। A significant fraction of our health resources is expended to care for those suffering from allergies from asthma। बहुत पैसा खर्च हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। गवर्नमेंट एजेंसीज, हॉस्पिटल, रिसर्च इंस्टीट्यूट सब डॉक्टर, ये पूरा हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारा, रिसर्च एलर्जी और अस्थमा को कॉम्बैट करने के लिए, चेक करने के लिए काफी ज्यादा फंड आज तक खर्च हो चुका है, होते रहेगा और हो रहा है, और अभी तक इनका सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। दवाई लेना पड़ता है हमेशा इसको, लेकिन रिसर्च चल रहा है तो नया नया नॉलेज हमको मिल रहा है, इसमें नॉलेज एडिशन हो रहा है। खास करिए वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है, समझे? तो इसी तो आप, हमारे देश में कम है एलर्जी और अस्थमा। हमारे देश में भी एलर्जी अस्थमा है, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो आप उसका परसेंटेज फ्रैक्शन वगैरह निकालोगे तो कम निकलेगा, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी, जो डेवलप सोसाइटीज है, वहां पर एलर्जी अस्थमा ज्यादा है, देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक और डायरेक्ट कोरिलेशन है, तो कोई तो वजह होगा वाई वहां पर डेवलप सोसाइटीज में एलर्जी अस्थमा ज्यादा मिल रहा है। तो इसका एक थ्योरी दिया गया, हाइजीन थ्योरी। तो हाइजीन थ्योरी एक्सेप्टेड थ्योरी है, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, रिसेंटली दिया गया है साइंटिस्ट द्वारा कि उसमें कहा यह गया है, हाइजीन थ्योरी हम थोड़ा थोड़ा समझा भी चुके हैं, आपको पहले बता भी चुके, शायद डिस्कस किए हैं। उसमें यही कहा गया है कि चाइल्डहुड, जो जिस सोसाइटी में, मतलब इसका बेसिक कंसेप्ट ये, आप कहोगे सर कहते हैं कि गंदा रहो फिर, मतलब नहीं, ऐसा बात नहीं है। यानी जो सोसाइटी ज्यादा हाइजेनिक तरीके से रहती है, बहुत साफ सुथरा एकदम एनवायरनमेंट से कट ऑफ जितना ज्यादा रहेगी, उसका एंटीजन से एनकाउंटर उतना कम होगा। तो ग्रोइंग डेवलपमेंट स्टेज में, चाइल्डहुड टाइम में उसके पेरेंट्स ने उसको बचा के रखा बहुत तरह के परागकण, और ये बाद में फिर उसका एनकाउंटर हुआ आफ्टर 13 years ऑफ दैट थाइमस डिग्रेडेशन के बाद। तो द चांसेज आर देयर कि उस इंडिविजुअल में पहले लाइफ टाइम 13 साल से पहले कभी उस परागकण से अगर उसका सामना नहीं हुआ, बहुत बचा के रखा उसका पेरेंट, हमेशा एसी में अंदर पैक, प्योर ऑक्सीजन फ्रेश एयर के चक्कर में खूब रहा, तो बाद में आफ्टर सर्टेन एज दैट पर्सन may develop the allergy against the एंटीजन, वो सब जिसका उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। तो यही हाइजीन थ्योरी है कि इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज में जहां हाइजीन का ज्यादा नहीं ख्याल रखा जाता है, सैनिटरी हाइजीन, ठीक है, ये सब गंदा संदा गोबर इधर उधर सब पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। वहां पर एलर्जी अस्थमा आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। किसी गांव में सुने हो किसी को अस्थमा है? नहीं नो मिलेगा, सर। ठीक है। शहर में मिल जाएगा आपको, दिल्ली में, बंबई में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लिफ्ट से चढ़ने वालों को, एसी से उतरने वालों को, ज्यादातर फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार, सब सेलिब्रिटी को कहते हैं लोग, आई एम एलर्जिक टू दिस, आई एम एलर्जिक टू दिस, आई एम फोबिक टू दिस, मुझे अस्थमा है, मुझे इससे एलर्जी है, मुझे एल्बुमिन से एलर्जी है, मुझे फलना चिलना करते रहता है सब, है ना, नखरा करते। तो ये सब जितना हाइजेनिक अपना फोकासी झाड़ा है वो सब उसको, तो कहने का मतलब हुआ कि आप प्रकृति से बच नहीं सकते हो। आप सर पॉल्यूशन भी क्या इसका एक काउज हो सकता है? यस,
व्हाई नॉट, पॉल्यूशन भी वजह है, ठीक है, पॉल्यूशन भी वजह है अस्थमा का, ठीक है, क्योंकि अब आप नया, पॉल्यूशन पहले तो होता नहीं था, पॉल्यूशन अब ज्यादा होने लगा है, तो पॉल्यूशन की वजह से न्यू न्यू एंटीजेंस, एलर्जेंस, ओके, कार्सिनोजेंस, इस तरह के सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। एक धुआं में 100 तरह का से ज्यादा उसमें कार्सिनोजन होता है। तो कौन सा किया, लाखों तरह के एलर्जेंस हैं, किस एलर्जन की वजह से एलर्जी हुआ, ये भी एक चैलेंज है पता करना। इसका फिर एक अलग टेस्ट होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स टेस्ट है। अब ये भी तो पता करना है, तब ना वो आदमी जानेगा कि हमको फलना चीज से एलर्जी है, हम इससे बच के रहें। उसके लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एलर्जिक पर्सन के लिए, ताकि वो अब प्रिकॉशन लेके चलेगा लाइफ लॉन्ग। तो उसको ये पता होना चाहिए कि हमको किस चीज से एलर्जी है। आगे बढ़े हम लोग, देखो यही हाइजीन हाइपोथेसिस है, यहाँ जिक्र आया इसलिए हम डिस्कस कर दिए शॉर्ट में कि one particular interesting rationale to explain the unexpected rise in allergic disease is called the hygiene hypothesis। ठीक है, ऑटो इम्यून में चले, हाइपर Yes, sir. सेंसिटिविटी अस्थमा एलर्जी का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? ओके, ऑटो इम्यून डिसीज क्या है? समटाइम्स, बार बार आपको बताया ही है, आपको आइडिया है ही पहले से, समटाइम्स द इम्यून सिस्टम मल्टी माल फंक्शंस, काम अपना काम करने में ये गड़बड़ी कर दिया, एंड ए ब्रेक डाउन इन द सेल्फ टॉलरेंस अकर्स। और सेल्फ एंटीजेंस के प्रति हमारे इम्यून सिस्टम में क्या टॉलरेंस डेवलप किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब एंटीबॉडी रिसेप्टर डाइवर्सिटी जब जर्म लाइन में जीन रीअरेंजमेंट के थ्रू जनरेट हो रहे थे, बी सेल और टी सेल का जब डेवलपमेंट हो रहा था थाइमस और बोन मैरो में, तो उसी समय जो सेल्फ रिएक्टिव रिसेप्टर्स थे, क्योंकि रैंडमली जनरेट हो रहा था, बताया है आपको, सेल्फ रिएक्टिव रिसेप्टर्स जो थे उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है इमीडिएटली जैसे ही प्रोटीन एक्सप्रेस हुआ, और जो रिएक्टिव नहीं थे सेल्फ रिएक्टिव, वो सर्कुलेशन में आगे पास किया जाता है, टेस्ट होता है वहां पर, ओके, रिएक्टिविटी टेस्ट। तो इसीलिए सेल्फ टॉलरेंस डेवलप हो गया। तो इसमें जहां गड़बड़ी हुई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा। This could be caused by a sudden inability to distinguish between self and non-self। ठीक है, सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में इनेबिलिटी हो गया डिस्टिंग्विश करने का। क्यों इनेबिलिटी हुआ, हम बताए ही अभी कि वहां पर क्रॉस रिएक्टिविटी होता है, रिएक्टिविटी है, अगर सेल्फ रिएक्टिविटी है तो डिग्रेड कर दिया जाएगा, अगर बच गया अगर सेल्फ रिएक्टिव वाला सेल तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर काउज कर देगा। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आर जेनेटिक, ओके, दिस कुड बी काउज्ड बाय सडन, ये हो गया sudden inability to distinguish between self and non-self, or by a misinterpretation of a self component as dangerous, causing an immune attack on the host tissues। अगर गलती से अपना भी प्रोटीन जो है एंटीजन के जैसा प्रेजेंट हो गया, जैसे एपीसी प्रेजेंट करता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल परोस करके बी एंड टी सेल को, तो वो भी अगर अपना प्रोटीन भी गलती से मिस इंटरप्रिटेशन हो गया वहां पर, वो भी एक सेपरेट मैकेनिज्म है जो एंटीजन प्रेजेंटेशन है, ओके, तो अपना सेल्फ कंपोनेंट भी जब डेंजरस बन जाएगा फिर, और अपने इम्यून होस्ट टिश्यू पर अटैक होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी एंड कैन रिजल्ट इन ए नंबर ऑफ क्रोनिक डेबिलिएटिंग डिजीजेस। तो डिजीज जो है वो क्या होते हैं, क्रोनिक हो जाते हैं, ठीक है, क्रोनिक मतलब लंबा साल तक चलेगा, ये जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक चलते रहेगा। एक बार गड़बड़ी हो गया ना, मशीन ही खराब हो गया, मशीन अंदर इंजन ही उसका, और इंजन कैसे बदलाएगा, नया जन्म लेना पड़ेगा। The symptoms of autoimmunity differ depending on which tissue or organs are under attack. For example, multiple sclerosis, ये भी एक आपका autoimmune disease है,
is due to an autoimmune attack on a protein in nerve sheaths in the brain and central nervous system that results in neuromuscular dysfunction. तो इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन हो जाता है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है। हाँ, क्रॉन्स डिजीज बताए थे, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। क्रॉन डिजीज इज एन अटैक ऑन इंटेस्टाइनल टिश्यूज that lead to destruction of gut epithelia and poor absorption of food occur in this person. Crohn's disease. One of the most common autoimmune disorder is rheumatoid arthritis. गठिया सुने होंगे। From an immune attack on joint of hands, feet, arms and leg. गठिया का बीमारी भी है, इसीलिए गठिया का इलाज नहीं हो पाता है। दवाई खाते खाते आदमी थक जाता है, डॉक्टर का चक्कर लगाते लगाते, लेकिन दर्द उसका नहीं जाता है। तो अंत में क्या करता है, अंत में क्या, शुरू में ही करना दर्द, पेन किलर ही उसका इलाज है। बस पेन को सबसाइड कीजिए और अपना आराम कीजिए, झाल बजाइए फिर। तो ये है गठिया आपका। बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर लाइकली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिसीजेस। तो आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि फिर ये होता क्यों है, होता कैसे है, इससे बचा कैसे जाए, इसका इलाज कैसे हो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का। तो ये डिफिकल्ट है और रिसर्च चलते रहता है, चल रहा है, ऑनगोइंग रिसर्च काफी चल रहा है इसमें वर्क। जैसे मैं जिस लैब में पीएचडी किया था, माय लैब वाज डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली एम्स में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर मेरा जो बहुत सारा लैब था, उसमें मेरा लैब था कॉम्प्लीमेंट लैब, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पर हम का लैब था। स्पेसिफिकली मेरे लैब में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पर काम होता था, क्योंकि मेरे गाइड का जो इंटरेस्ट था, पीएचडी गाइड प्रोफेसर निभृति दास, वो प्रोफेसर थी बायोकेमिस्ट्री की, वहीं उनकी लैब में काम करता था। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का लैब था। तो हमारे लैब में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पर भी काम होता था। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का डिजीज, ये रिमेटॉइड, एक लड़की थी जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस पर काम करती थी, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 इन रिलेशन विद द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रिमेटॉइड अर्थराइटिस। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो इसी तरह इसमें पूरी दुनिया में इन डिफरेंट लैब्स ये काम और एसएलई पर भी वो काम चलता था मेरे लैब। तो मैं मलेरिया पर करता था, एक लड़की थी वो टीबी पर करती थी। तो टीबी पर करती थी मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का टीबी के साथ क्या संबंध है, इसके पैथोफिजियोलॉजी में, और क्या हम स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं इस संबंध में। पूरा टीबी का नहीं, टीबी पर हजारों लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर्टिकुलर हो रहा था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन रिलेशन विद टीबी, और मैं कर रहा था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन रिलेशन विद मलेरिया। The other girl was doing complement system in relation with rheumatoid arthritis. दूसरा स्टूडेंट complement system in relation with SLE। तो सबका डिफरेंट बीमारी और कॉमन complement सिस्टम, उसका ये सबसे क्या रिलेशन है। तो सबका अपना अपना पीएचडी हो गया, डिफरेंट नया काम। तो पूरा दुनिया में इस पर बहुत काम चल रहा है, और हमको नहीं पता है बहुत सारी मैकेनिज्म्स कैसे हो रही हैं, और काफी डेड एंड है इसमें। However, exact combination of genes and environmental exposures that favor the development of a particular autoimmune diseases are difficult to pin down and constitute very active areas of immunologic research. Discoveries in these areas and the search for improved treatments are going on. अब थर्ड वाले पर आते हैं, इम्यून डिफिशियंसी। इतना क्लियर है सब लोगों को? आगे बढ़े। Yes, sir. ओके। कभी कभी क्या होता है
a component of innate or adaptive immunity is absent or defective, host then suffers from some form of immunodeficiency. Clear है? Some of these deficiency produce major clinical effects. कभी कभी बहुत भयंकर भी दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं उस व्यक्ति को, और कभी कभी इम्यूनोडिफिशियंसी उतना हार्म नहीं पहुंचाता है, और कभी बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा दिया तो मृत्यु भी हो सकती है. While others are minor or even difficult to detect, पता भी नहीं चलता है कुछ ऐसा माइनर डिफिशियंसी है इम्यून सिस्टम. हम देखते हैं आगे. इम्यून डिफिशियंसी कैन अराइज ड्यू टू इनहेरिटेड जेनेटिक फैक्टर्स कॉल्ड एज प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसीज. जब ये जेनेटिक है तो प्राइमरी है, यानी बाय बर्थ है ये डिफिशियंसी, इम्यून डिफिशियंसी, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसी. और कभी कभी ये इम्यून डिफिशियंसी जो है डिसरप्शन और डैमेज के द्वारा होता है बाय केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स. ठीक है, केमिकल, फिर कोई मान लो कीमोथेरेपी चल रहा है, कैंसर का पेशेंट है, कीमोथेरेपी चलता है उसका, तो कीमोथेरेपी के चक्कर में उसका इम्यून सेल्स भी बहुत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, तो उसको इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है. तो यहाँ केमिकल से इम्यून डिफिशियंसी हो गया. फिजिकल, अब उसी को गामा रेज चल रहा है, मान लिया कीमो के बाद गामा चलेगा, तो फिजिकल गामा रेज से भी इम्यून सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे. बायोलॉजिकल एजेंट्स, HIV आ गया तो आपका टी हेल्पर सेल पॉपुलेशन को खराब कर दिया, तो ये हो गया सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी. इतना क्लियर है आपको? अब दोनों का हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक भारी वाला, एक एक हल्का वाला. हेलो, यस सर, सुनाई दे रहा है. यस सर. ठीक. तुम लोग बीच बीच में समझ में आ गया, समझ में आ गया, बोलते रहो 5-5 मिनट पर, है ना? ठीक है. नहीं, आज समझ में आए तभी बोलो, जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं. मतलब कुछ बोलते रहो बीच में, तो हमको लगेगा कि फिर हाँ सब, क्योंकि चेहरा नहीं देख रहा हूं ना मैं, इसलिए. तो अब देखो, द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज. अब देखते हैं हम एग्जाम्पल इसका. Severity of the disease resulting from immune deficiency depends on the number and type of effective immune response component. तो साधारण सी बात है, किस इम्यून कंपोनेंट को किया है अफेक्ट, उस पर उसका सीवियरिटी डिपेंड करेगा. ओके, ए कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी इन नॉर्थ अमेरिका इज selective immunodeficiency in which one type of antibody called immunoglobulin A is lacking. और इससे कुछ खास नुकसान नहीं होता है, कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है इंडिविजुअल पर, उसको पता भी नहीं चलता है, लाइफ लॉन्ग अननोटिस्ड भी रह जाता है कई बार. ठीक है, और ये कॉमन टाइप है नॉर्थ में, है इम्यूनोडेफिशियंसी, बट इससे कुछ नुकसान नहीं है क्योंकि इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए इन्वॉल्व है, इसका कुछ ज्यादा रोल नहीं है. ठीक है ना, इन योर डिफेंस. तो एक कॉमन हो गया. A is lacking. The symptoms may be an increase in certain types of infections, or the deficiency may even go unnoticed. तो ये एक माइनर फॉर्म है, नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा और अमेरिका में. कॉकेशियन पॉपुलेशन जो व्हाइट्स हैं उनमें है. ये हम लोगों में नहीं है, ये बीमारी उस पॉपुलेशन में नहीं, हमारे पॉपुलेशन में. In contrast, a more rare but much more extreme deficiency called severe combined immunodeficiency in short form SID और SCID, कुछ लोग इसको SCID भी बोलते हैं, कुछ लोग SID बोलते हैं, जैसा आपको मन करे वैसा बोलो, लेकिन समझ जाओ कि ये क्या है. सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, इसमें क्या होता है, इट अफेक्ट्स बोथ B and T cells एंड एड्स से भी खराब है ये. बट ये क्या है, आपका प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी है, जेनेटिकली डिटरमाइंड है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका कोई दवाई नहीं होगा, जीन ही खराब है. अफेक्ट्स बोथ B and T cells एंड बेसिकली वाइप्स आउट अडेप्टिव इम्यूनिटी. B और T सेल को ही जब अफेक्ट कर दिया तो उस इंडिविजुअल में पूरा अडेप्टिव इम्यूनिटी ही वाइप आउट हो गया. एड्स में तो सिर्फ टी हेल्पर सेल ही जा रहा था, बी तो बचा हुआ था, इसमें बी और टी दोनों गया. When untreated,
Acid frequently results in death from infection at an early age. इसीलिए रेयर है क्योंकि बच्चे ही मर गए शुरुआत के स्टेज में सिट। लेकिन क्या लिखा रहा है? When untreated, इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट है, कुछ होगा इसका ट्रीटमेंट, कोई ड्रग से। लेकिन जेनेटिक डिजीज है तो जीन थेरेपी तो नहीं है, कोई ड्रग से इसको पाथवे में कहीं होगा ब्लॉक, उसको ठीक किया होगा। When untreated, SID frequently results in death. By far, तो ये दोनों क्या हो गए? SID जो हो गया आपका प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी, खतरनाक वाला। और माइल्ड वाला क्या बताए? एक नॉर्थ अमेरिकन पॉपुलेशन में इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है लाइकिंग है। अब सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी देखते हैं। खतरनाक वाला क्या है? एड्स। ठीक है, बाय फार मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट इज एड्स, resulting from infection with human immunodeficiency virus HIV. Humans do not effectively recognize and eradicate this virus. Instead, a state of persistent infection occurs. हम लोग फेल हो जाते हैं HIV के आगे और persistent infection हो गया। और HIV जो है hiding inside the genome, with HIV hiding inside the genomes of the TH cells. T helper cells को population को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और HIV का जो वायरस है T हेल्पर सेल के जीनोम में भी इंटरेक्ट कर जाता है। लाइसोजेनिक साइकिल अगर आप पढ़े होंगे वायरस का, तो वायरल जीनोम जो है डीएनए में कन्वर्ट होकर के फिर हमारे जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इट्स टारगेट सेल टाइप एंड द इम्यून सेल टाइप दैट इज क्रिटिकल टू गाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ द एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स। Okay, so as the immune attack on the virus mounts, more and more of T cells are T helper cells are lost. धीरे धीरे करके T helper cell one by one T helper cells का population जो है समाप्त हो जाता है HIV infection. When the disease progresses to AIDS, so many T helper cells have been destroyed or otherwise rendered dysfunctional that a gradual collapse of the immune system occurs. अब T helper cell नहीं है तो B कैसे एक्टिवेट होगा? B लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन कैसे होगा? It is estimated that at the end of 2010, more than 34 मिलियन यानी 3 करोड़ 40 लाख लोग दुनिया में जो है एड्स से पीड़ित हैं, which if not treated can be fatal. अगर नहीं ट्रीट किया जाए तो ये मरा जाएंगे। वैसे भी एक दिन मरना ही है तो पहले मर जाएंगे। For patients with access, certain antiretroviral treatments can now prolong life with HIV almost indefinitely. However, there is neither a vaccine nor a cure for this disease. इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। एंटी रेट्रोवायरल मतलब एनीबॉडी कोई बता सकता है? एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। नहीं पता है तो जान लो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो कि आरएनए को टेम्पलेट यूज करके फिर डीएनए सिंथेसिस करता है। हम लोगों के पास ये एंजाइम नहीं होता है, लेकिन वायरल जीनोम में दिस एंजाइम इज देयर। एचआईवी के पास ये एंजाइम है अपने जीनोम में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। तो हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का ही इनहिबिटर डाल दिए दवाई बना के, तो वो ओरली खाया, उसके सर्कुलेशन में है, सर्कुलेशन में गया इनहिबिटर ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, तो वो फिर सेल के अंदर गया, टी हेल्पर सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, और वहां पर जो वायरस का जो रेप्लिकेशन मशीनरी है उसको हैम्पर कर देगा, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ब्लॉक कर देगा। तो वायरस का आरएनए जो है यूजिंग योर होस्ट मशीनरी डीएनए में नहीं कन्वर्ट हो पाता है, तो इस तरह वायरस जो है रेप्लिकेट नहीं हो पाता। यही एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। ये कोरोना में भी इसका यूज किया जा सकता है, किया जाने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि वो भी आरएनए वायरस है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इनहिबिटर आप उसको दीजिए।
तो यही एंट्री रेट, जहां भी देखोगे रेट्रोवायरस मतलब क्या होता है, वायरस हैविंग आरएनए एज ए जीनोम, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज ए जीनोम। तो एंटी रेट्रोवायरल है, उसका एंजाइम जो है जो आरएनए को कन्वर्ट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसके अगेंस्ट। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. However, there is neither a vaccine nor a cure for this disease. ठीक है, वैक्सीन नहीं है और कोई क्योर नहीं है कि आपको अब कंप्लीटली ठीक कर दिया जाएगा, हो गए आप पहले जैसे हो गए। ठीक है ना? क्यों क्यों नहीं पहले जैसे हो सकते? क्योंकि टी हेल्पर सेल्स आर लॉस्ट। तो कहां से अब आएगा टी हेल्पर सेल? आप में एक बार बन चुका था ना पहले, 13 साल की उम्र, अब कहां से बनेगा? ये सब स्पेशलाइज्ड सेल्स थे। ठीक है, इनका रिसेप्टर सब सेलेक्ट हुआ था, ये सब टेस्ट पास किए थे। जब रिसेप्टर का डाइवर्सिटी जनरेट हो रहा था, जर्म लाइन में रीअरेंजमेंट हो रहा था, उसके बाद हम बताए ना टॉलरेंस टेस्ट पास किया ये। ठीक है, सेल्फ रिएक्टिविटी वाले जो डिस्ट्रक्ट कर दिए गए, ये सब पास किए हुए थे वो सब सारे टेस्ट। उसके बाद ये वायरस जो है उस सबको मार दिया। तो अब पहले जैसा तो हो नहीं सकता है, तो क्योर इसका कोई है नहीं और वैक्सीन भी नहीं है इसका। ठीक है, लेकिन हम पर्सन को बहुत दिन तक जिंदा रख सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं उसका लाइफ। किसके द्वारा? एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट के द्वारा। ठीक, अब देखते हैं हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है? ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इसी केस में अपीयर होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम में कंपोनेंट जो है डेफिशिएंट हो जाते हैं, उस समय अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब कोई दोस्त आपका ऐसा है जो कि मौका देख करके आपको धोखा दिया हो। वो दोस्त तो नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा लाइफ में रहा हो जैसे उसने मौके का फायदा उठाया और आपको धोखा दे दिया। वही है ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। नॉर्मली ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, तब तक जब तक आपका इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट नहीं था, स्ट्रांग था, तब तक ये आपको कुछ नहीं कर पा रहे थे। पैथोजेंस, these kind of pathogens which are involved in opportunistic infections, जैसे कि कैंडिडा एल्बिकन्स, ये तब तक नहीं कर रहा था आपको। नॉर्मल थे, हेल्दी थे, जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। जैसे इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव हुआ, डेफिशिएंट हुआ, ये इन्फेक्शन, ये पैथोजन जो है अब आपको, यानी इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ दिस पैथोजन। पहले भी इन्फेक्शन था उस पैथोजन का, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था, आराम से वो भी पड़ा हुआ था, टॉलरेट किया होता, आपका इम्यून सिस्टम उसको वाइप आउट भी कर देता था। ठीक है, लेकिन जैसे इम्यून सिस्टम आपका डेफिशिएंट हुआ, ये इन्फेक्शन जो है आपको सीवियरली बीमार कर देगा, और ऐसा बीमार करेगा कि डेथ भी हो सकता है। पहले कुछ नहीं कर पा रहा था, अब इम्यून सिस्टम जब डेफिशिएंट हुआ तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो है आपका काम तमाम कर देगा। तो एड्स के केस में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो लीथल हो जाता है। सो व्हाट इज इट? It is important to note that many pervasive pathogens in our environment cause no problem for healthy individuals. ठीक है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। क्यों? थैंक्स बोलो उसको, किसको? थैंक्स टू द इम्यूनिटी दैट डेवलप्स फॉलोइंग इनिशियल एक्सपोजर। इनिशियल एक्सपोजर हुआ था तो उसके अगेंस्ट हमारे को पास इम्यूनिटी है, तो ये पैथोजन कितना भी बार बार एनकाउंटर करते रहे हमको कुछ नहीं होगा। लेकिन अब डेफिशिएंट हो गया एडेप्टिव इम्यूनिटी का कंपोनेंट, तो अब